Okay, so there are some, theoretical stuff. There are some theoretical stuff that we should read out from our notes. A group or selection that can be made by taking some or all of number of things. Well, you can take some or you can take all of the things. As in, you are going to arrange, you are going to select 5 papers out of 5. Or you are going to select, not arrange, you are going to select 5 papers out of 5, or you are going to select 3 papers out of 5. So I have just written it completely wrong. You have to select 3 papers out of 5. So this is what it is. Some or all of the number of things is called combination. Symbolically, the number of combinations and different things taken R at a time is denoted by, again, NCR, N, C, R, or it is NCR, or it is NR. So it doesn't matter. So इसका रीड कैसे किया जाता है? NCR बोलो या NCR बोलो, it is same. Okay, so there are different representation, and read it as NCR. In other words, a combination C of NR or NCR is a selection in any order. Okay, this is what important is, in any order of n objects taken R at a time. In any order. We do not require a order over here. Now, what NCR का formula is? We all know it is n factorial divided by r factorial. Or I would rather write it in this way. ओके, सो हाँ, ये तो तुमको सबको पता ही है, ये फॉर्मूला तो अपने पिछले सेशन में डिराइव किया. लेकिन व्हाट वी अमेजिंगली डिराइव्ड वाज इट इज नथिंग बट इक्वल टू NPR ओवर r फैक्टोरियल. सो इट इज बेटर टू रिमेंबर इट इन दिस वे, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट परम्यूटेशन. बस तुमको परम्यूटेशन निकालना आता है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, यू आर डन विद द कॉम्बिनेशन. If you want to calculate permutation, you know the formula or way to calculate permutation. If you want to calculate combination, well, you calculate the permutation and you divide it by r factorial. That simple it is. You do not have to remember this big formula, okay? And yeah, you are done with that. Okay, so yes, there are few examples that we are going to understand. Okay, before the various types of combination. So why don't we just begin with it? There are lots of many examples that we have to cover up in examination, in an examination paper on mathematics. Okay, mathematics, 10 questions are set in how many different ways examinee choose 6 questions. Okay, उसके पास में पेपर में 10 क्वेश्चन थे, उसको बोला गया कि तू 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर. वेल इट्स सिंपल. मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आई विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स. क्योंकि 6 सिलेक्ट करना है मेरे को, तो मेरे को 6 की अरेंजमेंट करनी है, मतलब मेरे को 6 ब्लैंक्स निकालने पड़ेंगे. वेल, पहला क्वेश्चन करने के लिए उसके पास में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे. जैसे ही वो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उसके पास में अब 9 क्वेश्चन रहेंगे बचे हुए, जिसमें से वो कोई भी एक पिक कर सकता है सॉल्व करने के लिए. देन ही विल बी हैविंग 8, क्योंकि उसमें से यहाँ पे पिक कर लिया होगा. अब जैसे वो यहाँ पे पिक कर लेगा, उसके पास में बचेंगे 7, देन 6, देन 5. बट ये जो भी हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ अपना क्या हुआ? अरेंजिंग हुआ, परम्यूटेशन हुआ. What we are concerned about is nothing but NCR. We are concerned about combination. So what we are going to do is, we are going to just divide it by this 6 factorial, and then we are done. So whatever it is, so it's really a big number, I guess. 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5. Okay, it's 1,51,200 and divided by 6 factorial. Now 6 factorial is 720. I know you should be able to know now. You should also remember now what 6 factorial is, and therefore dividing these two, I get 210 ways. So there are literally 210 ways. अब तुम भी कभी एग्जाम में जाओगे और तुम्हारे सामने कभी क्वेश्चन पेपर 10 क्वेश्चन दे दे तुम्हारे को, और बोले कि बेटा कोई भी 6 सॉल्व करो, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि भाई मेरे पास में 210 तरीके हैं, ये 10 में से कोई भी 6 करने के 210 तरीके में से मैं कोई भी एक तरीका उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, और मैं पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. दैट इज हाउ अमेजिंग इज
यू डू नॉट इवन नो कि तुम्हारे पास में इतने पॉसिबल ऑप्शंस भी है टू सॉल्व, या यू डू नॉट फाइंड इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एग्जाम पेपर की बात चल रही थी यहाँ पे, वो यहाँ पे ड्रेसेस की खरीदी की बात करता तो यू वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस. बट एनीवेज, सो दिस इज fantastic thing, you know, mind blowing thing, that there are 210 ways, out of which in 210 ways to select 6 questions out of the 10. So that is how you tackle the problem. What I did was I did first permutation. न्यूमरेटर में मैंने परम्यूटेशन किया और डिनोमिनेटर में मैंने डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया. दैट्स इट. आई डिडंट, मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी सोचा नहीं. मेरे को उन्होंने बोला चूज करो, यानी मेरे को कॉम्बिनेशन पता चल गया. जैसे मेरे को कॉम्बिनेशन पता चला, मैंने परम्यूटेशन निकाला और उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, इनकी सिलेक्शन, यहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं ना, इनकी पॉसिबल जो अरेंजमेंट्स होती है उस अरेंजमेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ. डिलीट इसलिए करता हूँ क्योंकि इट डजेंट मैटर ऑर्डर क्या है. एनीवेज, next question. A committee of 7 is to be formed from 9 boys, 5 girls. In how many ways these can be done when the committee contains exactly 3 girls and second at least 3 girls. So now I would suggest, and जैसे कि बोलते दूसरा भी शब्द उसके लिए, कि मैं तुम्हें एनकरेज करूंगा कि वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. ये पार्ट को तो भी, या दोनों को, आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू कि सिर्फ तुम यही पार्ट को करो, तुम दोनों भी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो. गिव योरसेल्फ अ ट्राई. लेट्स जस्ट कंसिडर कि तुमने किया होगा ट्राई. नाउ आई एम गोइंग टू डू. सो पहले ऑप्शन ए कर लेते हैं. दे आर आस्किंग अस कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स तो रहनी चाहिए. कमिटी कितने जन की फॉर्म हो रही है? 7 की फॉर्म हो रही है, और देर आर 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स. तो वाई डोंट वी जस्ट सिलेक्ट सेपरेटली? पहले तो हम 9 बॉयज में से कितने बॉयज सिलेक्ट करने वाले, टोटल 7 की कमिटी बनने वाली है. सो यहाँ पे लेट मी जस्ट ड्रॉ इन दिस वे, लेट मी जस्ट से बॉय प्लस girl. Okay, so if I'm selecting 3 girls exactly, if I'm selecting 3 girls, तो मैं बॉयज कितने सिलेक्ट करूंगा इन ऑर्डर टू गेट 7? मैं सिलेक्ट करूंगा 4. सो मेरे पास में अब एक बात पता चल गई कि मेरे को 9 में से कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं फॉर ऑप्शन ए? 4. और 5 गर्ल्स में से मेरे को कितने गर्ल्स सिलेक्ट करनी है? सिर्फ 3. सो मैं डिफरेंटली, सेपरेटली मैं पहले इनका सिलेक्शन कर लेता हूँ और बाद में उनको मर्ज कर लूंगा. देखो कैसे. नाउ सिंस सी दैट मेरे पास में कितने बॉयज थे? 9 बॉयज थे, लेकिन कितने सिलेक्ट होने वाले? सिर्फ 4. सो 1 2 3 4. ओके, अब 9 बॉयज थे तो पहला बॉय सिलेक्ट करने के कितने तरीके? वेल आई हैव 9 वेज. दूसरा बॉय सिलेक्ट करने के, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, बाद में बचे 8. अब यहाँ पे जैसे सिलेक्ट हो जाएगा 8 में से, बाद में बचेंगे 7, और जैसे 7 में से कोई एक सिलेक्ट हो जाएंगे, बचेंगे 6. बट सिंस दिस इज द परम्यूटेशन एंड 9 into 8 into 7 into 6 is nothing but 3024. ये मेरा हो गया लेकिन नंबर ऑफ परम्यूटेशन. बट वॉट रियली आई वॉन्ट इज कॉम्बिनेशन. तो मैं क्या करूंगा? आई विल डिवाइड इट बाय r factorial. एंड वॉट माई r factorial is? My r factorial is nothing but 4 factorial. And so 3024 divided by 24 will give me 126. So my answer is 126. लेकिन ये आंसर किसका आया? यह आंसर आया मेरे बॉयज के सिलेक्शन का. अब गर्ल्स का सिलेक्शन बाकी है. सो व्हाई डोंट वी जस्ट गो ऑन विद द गर्ल्स सिलेक्शन. सी हाउ मेनी गर्ल्स डिड आई हैड विद मी? 3. टोटल में कितने थे? 5. सॉरी, हाउ मेनी गर्ल्स डिड आई हैड विद मी? 5. एंड हाउ मेनी आई हैव टू सिलेक्ट? ओनली 3. तो ब्लैंक स्पेसेस कितने आएंगे? वेल 1 2 and 3 आएंगे. एंड आउट ऑफ दिस 3 पहले इसमें लेट्स से 5 में से एक कोई सिलेक्ट हो जाएगी, बाद में 4 में से, और बाद में 3 में से. So then finally what I will get is, well finally it's simple. Now since 5 into 4 into 3, ये तो मेरा क्या होगा? पॉसिबल, वेल परम्यूटेशन हो गया मेरा. लेकिन आई वांट कॉम्बिनेशन. तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय सिंस ये मेरे पास में कितने गर्ल्स थे? 3 गर्ल्स थे, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. और न्यूमरेटर में क्या आएगा? वेल न्यूमरेटर में मेरा आ जाएगा 60, क्योंकि 5 into 4 into 3 is my 60, and that in turn will give me where is the color? Okay, 60 divided by 6 is nothing but 10. So गर्ल्स को सिलेक्ट करने के 10 वे है और बॉयज को सिलेक्ट करने के 126 वे है. बट उन्होंने क्या बोला है? टुगेदर फॉर्म करना है कमिटी को. मतलब क्या? इसका और इसका टुगेदर मिला के जो आएगा वो फॉर्म होगा. अब जो ये सोच रहे
कि 126 प्लस 10 होगा, वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अगर आप कंसिडरेशन में लोगे तो अपन ऐड तब करते हैं जब एक तो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं या तो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ऐड जब करते तब और हो रहा है, एडिशन जब आता है तब क्या हो रहा है, अपन एक तो ये सिलेक्ट करो या तो ये सिलेक्ट करो, बट द रियलिटी इज दैट आई एम सिलेक्टिंग बोथ। और जब बोथ सिलेक्ट हो रहा है मतलब दोनों इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। व्हेन द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई, देयरफॉर आई विल जस्ट राइट डाउन एनसीआर और मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा अभी। ओके, देयरफॉर माय पॉसिबल या सिलेक्शन मेरे पास में क्या रहेगा, मेरे पास में रहेगा मेरा एनसीआर विल गिव मी वेल 126 into 10 and that is my answer 1260, well there is a space, ways 1260 ways। ये कैसे निकाला मैंने, फर्स्ट है सेपरेटली सिलेक्टेड हाउ मेनी बॉयज के कितने तरीके हैं, देन आई सेपरेटली सिलेक्टेड गर्ल्स के कितने तरीके। वेल इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इट्स रियली क्विक फॉर यू गाइज। कैसे क्विक है, बट इससे बेटर क्विक नहीं है वो, इससे बेटर क्विक नहीं है वो, क्योंकि व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको बता दूं मैं तो, व्हाट यू विल हैव टू डू इज 9c4 into 5c3, सो आपको फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर आपको कैलकुलेशन करके ये आंसर मिलेगा 1260 वेज। सो दे आर द सेम बट दे आर, ये इतना फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पे फटाफट आंसर आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है, बट यू हैव द फॉर्मूला, यू नो हाउ टू गिव द इनपुट्स, यू विल गेट द आंसर। सो ये मेरा हो गया, लेकिन ए, बट आई वांट द बी ऑल्सो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होने चाहिए। वेल एटलीस्ट 3 गर्ल्स में अपने सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं मेरे। देखो पहले तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पहला सिनेरियो ये आता है कि लेट्स जस्ट कंसिडर बॉयज मेरे 4 है, लेकिन मेरी गर्ल्स जो है वो है 3 है। मेरा सेकेंड सिनेरियो ये रहेगा कि मेरे बॉयज हो जाएंगे जो भी, लेकिन मेरी गर्ल्स जो है वो रहेंगी 4, क्योंकि 3 और 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बॉयज कितना आ जाएंगे, वेल मेरे बॉयज आ जाएंगे 3। और मेरा लास्ट सिनेरियो ऐसा रहेगा जिसमें आई हैव ऑल द गर्ल्स इन माई टीम, लेकिन फिर मेरे बॉयज कितने रहेंगे, आई हैव टू फॉर्म द कमिटी ऑफ 7 ओनली, तो मेरे बॉयज रहेंगे ओनली 2। सो देर आर 3 डिफरेंट केसेस। इसका जो आंसर आएगा, वेल इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, तीनों का एडिशन विल गिव मी माई टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द परम्यूटेशन ऑकर्स। वेल सबसे पहले का तो मेरे को आंसर पता ही है, इट इज 1260 वेज। 2 का ट्राइंगल बनाया उसने, बताओ 1260 वेज, ओके। सेकंड का निकालना पड़ेगा आपको और थर्ड का। सो मैं सेकंड निकाल के रखता हूं और थर्ड आप लोग निकालिएगा, ठीक है। द ड्रिल इज कि वही टेक्निक वापस में वापरूंगा। इन टोटल आई हैड 9 बॉयज एंड इन टोटल आई हैड 5 गर्ल्स। सो पहले मैं बॉयज का कर रहा हूं, तो लेट्स जस्ट टेक, कितने बॉयज सिलेक्ट हो रहे, 3। सो आई विल हैव 3 ब्लैंक्स, 1 2 3, ओके। एंड लेट्स से पहले ब्लैंक के लिए 9 आएंगे, तो बाद में के लिए 8, तो बाद में के लिए 7। बट जो आंसर आएगा इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय दिस 3 फैक्टोरियल, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन है, मेरा सिलेक्शन है इसलिए। सो लेट्स जस्ट टेक द मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा मेरा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6। सो ये आ जाएगा मेरा 84, लेकिन मेरा 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना है, 504। 504 डिवाइडेड बाय 6 इज नथिंग बट माई 84। सो ये आ गया मेरा 84 वेज। लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नहीं, आई स्टिल हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। सो मैंने गर्ल्स के लिए निकाला, आई विल डू इट ओवर हियर, 1 2 3, बट यहाँ पे अब आ गए 4, क्योंकि गर्ल्स तो 4 है मेरे पास में। अब आउट ऑफ दीज लेट्स से 5 ने पहले पोजीशन के लिए 5 में से कोई सिलेक्ट होंगी, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2। सो द फाइनल आंसर विल गिव मी, एंड बट द थिंग इज दैट ये जो आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरा परम्यूटेशन रहेगा। आई हैव टू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ गर्ल्स के परम्यूटेशन के साथ, फैक्टोरियल के साथ में। सो 4 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर दूंगा। सो लेट्स सी द आंसर, लेट्स जस्ट सी हाउ मच इट टर्न्स आउट टू बी। ये होगा मेरा 20, ये हो गया 60 और ये हो गया 120, है ना, या एग्जैक्टली 5 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स नथिंग बट 120। सो 120 डिवाइडेड बाय 24, 120 divided by 24 is going to give me 5,
सो यहाँ पे जगह है मेरे पास में, आई हैव 5. सो अब लेकिन मेरा यहाँ पे अब आंसर खत्म हो गया क्या इसका? नहीं, आई हैड टू कैलकुलेट कितना वेज आ रहा है भाई. सो क्या करूंगा मैं? 84 इंटू 5 करूंगा. प्लस करूंगा क्या? नहीं, प्लस नहीं होगा. दोनों भी मिलके एक कमिटी फॉर्म हो रही है, तो दोनों का आना इंपॉर्टेंट है. सो ये दोनों डिपेंडेंट है, और ये जब दोनों डिपेंडेंट है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. सो 84 इंटू 5 विल गिव मी 420 वेज. सो देयर यू गो, 420 ways. And now I will encourage you guys to do the तीसरा वाला by yourself. Okay, मैं उसका नहीं कर रहा हूँ. I'll just directly write down the answer and check whether yours is correct or not, or if not then it's okay, if yes then good. And for last, let's say यहाँ पे 420 आ रहा है तो ये 360 ways आएगा. And finally my answer will be 1260. यूज द कैलकुलेटर यू हैव, डोंट गो ओरली, क्योंकि ओरली थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती है. जैसे भी मेरे, अरे 360 वेज कैसे आएगा बाबा? 36 वेज ही आएगा, क्योंकि 5 गर्ल्स सिलेक्ट करने के 5 डिफरेंट तरीके हैं. कॉम्बिनेशन हो गया 5 फैक्टोरियल. ये कितना आ जाएगा? 5 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, सो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 1. और 9 इंटू 8 divided by 2 factorial, 9 into 8 divided by 2, so give me 36. exactly 36 ways ही आते हैं. There is a pretty much good result now. अपने को एक रिजल्ट मिलने वाला है, वेरी गुड. सो यस, माई आंसर इज 1260 प्लस 420 प्लस 36, 1716 ways, and then we are done. That is how you calculate. Now let's give this one as a homework for you guys. हर कमेटी में से 2 मेंबर सिलेक्ट होके आने वाले. सो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल दूं तो चलेगा क्या कि यू हैव इन टोटल टू सिलेक्ट, टोटल आपके पास कितने? 7 + 6 + 3 दैट इज गोइंग टू गिव यू 16, जिसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 6. बट द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जैसे सेपरेटली मैंने यहाँ पे बॉयज को कैलकुलेट किया था, गर्ल्स को कैलकुलेट किया था, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन लिया था, फिर 126 × 10 लिया था, वैसे ही पहले 7 में से 2 को सिलेक्ट करना है, 6 में से 2 को और 3 में से 2 को, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखिए, जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी योर आंसर. सो आई होप कि तुमको ये आंसर आ जाएगा. इवन दो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे. द आंसर शुड बी 945 ways. 945 ways. Okay, 945 ways. Okay, so please try it. ये जैसा मैंने ये किया है ना, वैसे ही करना है. Okay, it's simple now. Let's move on to the next example and second last example. Well, it says that find how many number of combinations of the word letter college taken 4 at a time. अब क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है एक. देखो, let me just erase this part. I hope you all can do this. Okay, so considering the example next, what the word is? COLLEGE. The letter word is college, and I have to, number of combinations 4 at a time में अगर इसमें से select करता हूँ 4 at a time from this word college. So now अब इसमें रिपीटेशन हो रहा है, और परम्यूटेशन में रिपीटेशन जब होता है तब हम अपन डिवाइड करते हैं. So यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं. ओके, पहला केस क्या होगा मेरा? पहले केस में मैं सीधा बोल देता हूँ कि मैंने पहले एक C को सिलेक्ट किया, O को सिलेक्ट किया, L को सिलेक्ट किया, E को सिलेक्ट किया. दैट्स इट. मैंने ये कौन सा L है कौन सा E है उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए मैंने बस पहले सिलेक्ट कर लिया COLE. 4 लेटर वर्ड बना लेगा मेरे को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. एग्जैक्टली. सो मैंने क्या किया, 5 में से, एंड आई विल यूज नाउ फॉर्मूला, जस्ट सो यू नो फॉर्मूला की भी थोड़ी हैबिट हो जाए. तो आई हैव सिलेक्टेड 4 out of 5. नेक्स्ट केस. अब मैंने क्या सिलेक्ट किया, देखो मैंने सिलेक्ट किया 2 L और 2 E.
अब इसका पॉसिबल, वेल ये दोनों तो एक ही है ना, मेरे को बताओ तुम ये दोनों मेरे को सिलेक्ट कितने बार कर सकते हैं? वेल एक ही बार कर सकते है ना। 2 लेटर एक काइंड के है तो कैसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगी? एल ई, एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगी वहां पे, एल और ई। सो यहां पे आ जाएगा मेरा, वेल आई कैन राइट इट ओवर हियर एज डायरेक्टली 1। सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। नहीं समझ में आया? गौर से सुनो, अगर समझ में नहीं आया होगा जिनको, तो ये 2 एल एक ही बात है और ये 2 ई ये भी एक ही बात है। जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन में अपन बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द थिंग्स, यहां पे मेरे पास में सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके? तो भाई एक ही तरीका है, मैं एक एल को सिलेक्ट करूंगा और ई को सिलेक्ट करूंगा, दैट्स इट। देयर आर नो डिफरेंट अदर वेज टू सिलेक्ट इट। ओके, एंड लास्ट सिनेरियो, अब लास्ट सिनेरियो मेरा कैसा है देखो, एंड दिस इज व्हाट इंटरेस्टिंग इज। तीसरा सिनेरियो, यहाँ पे 2 एल 2 ई रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूं, 4 में से 2 लेटर डिफरेंट ले लेता हूं, सी और ओ, ये डिफरेंट हो गए। ओके, अब मेरे पास में एक तो डबल एल आ सकता है या तो डबल ई आ सकता है। ओके, मेरे पास में एक तो डबल एल आ सकता है या तो डबल ई आ सकता है। सो लेट्स जस्ट चेक कि अगर मैंने ई ले लिया तो जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे 2 ई था तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एक ही थे, सो आई एम कंसिडरिंग ई एज 1 और एक जी। ये हो गया एक केस, और इसी में ही मेरा दूसरा केस क्या रहेगा, और COLG, ये मेरे हो गए 2 पॉसिबल और केसेस। उनके इसमें खुद के इसमें 2 तरीके है ना। और तुम एक बात याद करो, जब तुम परम्यूटेशन करते थे, जब एक ही केस के लिए 2 अलग अलग पॉसिबल कंडीशंस आ रही है, 2 अलग अलग पॉसिबल कंडीशंस आ रही है, सो मेरे पास में ये 2 अलग अलग पॉसिबल तरीके हो गए। सो वॉट एवर माई आंसर विल बी कॉम्बिनेशन का, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही। तो मेरे पास में 2 तरीके हैं। सो मेरे पास में 2 तरीके हैं। सो ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? सिंस, अब देखो एक बात तो सिंपल है, मेरे पास में 4 लेटर थे। ओके, 4 लेटर में से 2 लेटर तो फिक्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली, डबल ई बोलो या डबल एल बोलो, बचेंगे कितने फिर? 2 ही लेटर, एक तो CO या तो CG या तो CO या तो अगेन CG या तो फिर OG, है ना। तो 4C2, and that is my friends or students whatever you think of me as your friend or teacher or whatever, is your answer. Just you have to add all these 3 cases, and that 3 cases are 5C4 plus 1 plus 2 times 4C2, and whatever the answer is, you calculate this. And I would rather say that कॉम्बिनेशंस की अब अपन अगली वीडियो में ना कुछ चीजें देखेंगे जिसमें आपको आंसर बहुत क्विकली मिलेगा। जैसे परम्यूटेशन के इसमें देखा था अपन ने, वी न्यू दैट NPN एंड NPN-1, आई गेस दे आर द सेम, है ना। ऐसी कुछ चीजें जो अपन ने परम्यूटेशन में देखी, वैसी कुछ चीजें अपन कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे। और कॉम्बिनेशन में का एक तरीका ऐसा है कि इफ देयर इज 5C4 देन यू डायरेक्टली राइट 5, जो यहाँ पे रहता है वो, प्लस 1 प्लस, अब 4C2 ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो तुम्हारा आएगा 6 into 2 is 12, and that is your answer, 13-18 ways. So यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। तुम्हारे पास में हमेशा एक बात याद रखो कि तुम सिलेक्शन हो रहा है, while सिलेक्शन और while अरेंजमेंट, while अरेंजिंग और सिलेक्टिंग, कुछ भी रहो, तुम्हारे पास में अगर लाइकली सिमिलर काइंड की अगर कोई चीज आ जाती है सिमिलर काइंड की, तो तुम उसको एक कंसीडर करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंसीडर किया फिलहाल, तो ये 4 बन गए। यहाँ पे ये 2L को एक कंसीडर किया तो ये 4 बन गए। एग्जैक्टली। अब अगर इन केस समझो, इन केस मेरे को ये सिलेक्ट करना है, तो इसमें ये एक ई यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इन केस मेरे को G नहीं चाहिए, मेरे को L के साथ में चाहिए, यहाँ पे मेरा L रहेगा। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि वाइल इन अरेंजमेंट और सिलेक्शन जब भी सिमिलर लाइकली थिंग्स आ जाते हैं तो यू हैव टू कंसिडर इट एज 1, सो दैट अब तुम्हारे पास में कितने बचे, ऐसा। ओके, या तो फिर तुम ऐसा कंसिडर करो, क्योंकि मैं तुमको ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल समझो, लेट्स से कि तुमने यहाँ पे 2L ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, ओके। अब तुम्हारे पास में ये और ये पोजीशन को फिल करने के कितने लेटर्स बचे? वेल, यू हैव C, यू हैव O, यू हैव G एंड यू हैव E ऑल्सो, बट ये E एक ही कंसिडर किया जा रहा है, ऐसा। अगेन तुम्हारे पास में O या C आएगा, अगेन तुम्हारे पास में C और E आएगा, अगेन तुम्हारे पास में E और G आ सकता है, वॉट एवर इट इज, ये अलग काइंड के आ गए। इसलिए मैंने लिखा एक तो पॉसिबल वर्ड्स इसमें से होगा जब डबल L रहेगा, एक तो पॉसिबल लेटर्स L इसमें से एक L होगा जब यहाँ पे डबल E सिलेक्ट किया है तुमने ऑलरेडी 4 लेटर में। सो यहाँ पे तुम ये 4 में से कोई भी 2 को लो और तुम्हारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स कॉम्बिनेशंस बता दो, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बता दो, एंड दैट इज हाउ यू डू द कॉम्बिनेशंस। सो lastly let me just take the last question. Among 20 members of a team there are 2 wicketkeeper, 5 bowlers, at least 3 bowlers. So this is the kind of question that is very simple for you guys. You can do 20 team members थे, जैसे अपना सबसे पहला एग्जाम्पल था 20 टीम मेंबर्स थे, उसमें से उन्होंने कितनों को सिलेक्ट कर लिया? वेल, उन्होंने बोला है कि देखो 2 विकेट कीपर होने चाहिए कंपल्सरीली 11 में, 11 प्लेयर में 2 विकेट कीपर होना चाहिए, 5 बॉलर होने चाहिए। अब बच्चे कितने फिर? और एटलीस्ट अच्छा 20 मेंबर की टीम है, उसमें से 20 मेंबर में से 2 विकेट कीपर है। ओके, इसमें 2 विकेट कीपर है और 5 बॉलर्स है, तो बच्चे कितने? 13। तो 13 बैट्समैन इनके पास में, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं बैट्समैन, विकेट कीपर और बॉलर की टीम बन रही है, नो ऑलराउंडर, और तुमको 11 जन की टीम बनानी है इस हिसाब से कि 1 विकेट कीपर और एटलीस्ट 3 बॉलर्स रहने चाहिए। एटलीस्ट 3 बॉलर्स रहने चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारे पास में केसेस आ जाएंगे, 3 बॉलर या तो 4 बॉलर या तो 5 बॉलर। पहले 3 बॉलर के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ 11 टीम का, फिर 4 बॉलर के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ और फिर 5 बॉलर के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ, और वो जो तीनों केस रहेंगे तीनों का एडिशन करो, यू विल गेट द आंसर। अगर नहीं भी आया तो मैं नेक्स्ट सेशन में पहले इसको सॉल्व कर लूँगा और फिर वी विल मूव ऑन विद द फर्दर टॉपिक ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज, थैंक यू।